مصر کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا اور لوگ اس قبیلے کو ریشمی قبیلے کے نام سے جانتے تھے۔ ریشمی قبیلہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا اور بہادر قبیلہ تھا اور اس کا سردار بھی بہت بڑا جنگجو تھا، لیکن ریشمی قبیلے کے بد نصیبی کی بات یہ تھی کہ اس قبیلے کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں تھا۔ قبیلے کے سردار کے قبضے کے اندر ایک بازار تھا جس نے صلیبیوں سے جنگ کے ذریعے حاصل کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بازار کے اندر اکثر یہودی تجارت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ریشمی قبیلے کے سردار کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہودی تاجروں کو اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی اجازت نہ دے۔ وقت گزرتا رہا اور یہودی تاجروں نے ریشمی قبیلے کے سردار کی مجبوریوں کو دیکھ کر اپنی ناجائز شرائط رکھنا شروع کر دی۔ کبھی تو وہ کوئی مطالبہ کر دیتے، کبھی وہ وصول یعنی ٹیکس کم کر دیتے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ بازار کے اندر اپنے من کے دام مقرر کر دیتے اور جب ریشمی قبیلے کا سردار ان سے کوئی سوال کرتا تو اس کے آگے بازار کو چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتے۔ سردار بڑا ہی پریشان ہوتا کہ اگر یہ تاجر میرے بازار کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ کسی ویران کھنڈر سے کم نہیں ہوگا۔ میں تاجروں کے بغیر اس بازار کا کیا کروں گا؟ اس بازار سے ہی میں اتنا سونا حاصل کر سکتا ہوں کہ جس سے میرا قبیلہ چل رہا ہے۔ لیکن سردار بڑا پریشان تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنے بازار کے اندر کچھ مسلمان تاجروں کو آنے پر رضامند کرے، لیکن وہ قبیلہ باقی آزادی سے بہت زیادہ فاصلے پر موجود تھا اور مسلمان تاجروں کو آنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا، لہٰذا اکثر تاجر اس بازار میں آنے سے انکار کر دیتے اور کچھ تاجر آتے تو چند دنوں کے بعد اس بازار کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ بس یہودی تاجر جو کہ ساتھ میں ہی موجود قبیلے کے اندر رہتے تھے، بس وہی اس قبیلے کے اندر بازار کے اندر تجارت کرتے اور اسی طرح ریشمی قبیلے کے سردار کا بازار چل رہا تھا۔ چند دن گزرے تو یہودی تاجر نے ایک عجیب و غریب چال چلی، کیونکہ اس بازار کے اندر جتنے بھی قصابوں کی دکان تھی وہ یہودی تاجر کی تھی۔ ایک دن قبیلے کے سردار نے شہر کے قاضی کے لیے دعوت کا بندوبست کیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار چلے جاؤ اور جا کر گوشت خرید کر لاؤ۔ جب یہودی تاجروں نے دیکھا کہ شہر کا قاضی آ رہا ہے اور بہت بڑی مقدار میں سردار گوشت منگوائے گا تو لہٰذا یہودی تاجروں نے دمبے کے گوشت کے اندر خنزیر کا گوشت ملا دیا اور سردار کے سپاہیوں کے ہاتھوں پکڑا دیا۔ سردار کے سپاہی گوشت قبیلے کے اندر لے آئے۔ باورچی نے قاضی کے لیے گوشت تیار کیا، لیکن انہوں نے بڑی چالاکی سے خنزیر کا گوشت ساتھ ملا لیا کہ باورچی کو پتہ ہی نہ چلے۔ جیسے ہی قاضی کے سامنے کھانا رکھا گیا تو قاضی نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تو اس نے سردار سے کہا، اے سردار، کیا تم نے یہ جان بوجھ کر کیا یا پھر تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے؟ تو سردار نے کہا، قاضی صاحب، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آخر آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اس قاضی نے کہا، اے سردار، کیا تم نہیں جانتے کہ گوشت کے اندر نہ صرف دمبے کا گوشت ہے بلکہ اس کے اندر خنزیر کا گوشت بھی ملا ہوا ہے؟ یہ سن کر تو سردار اسی وقت کھڑا ہو گیا اور کہا، قاضی صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم خنزیر کا گوشت کھانے والے تھے؟ تو قاضی نے کہا، جی ہاں سردار، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس گوشت کے اندر خنزیر کا گوشت ہے۔ تو سردار نے اسی وقت حکم دیا کہ یہودی تاجر جس سے گوشت خریدا گیا ہے اسے بھی اسی وقت میرے خیمے میں حاضر کیا جائے۔ چند لمحے گزرے تو قاضی صاحب نے دیکھا کہ ایک آدمی جو اپنے گھوڑے سے اترا اور بڑے غرور کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور بغیر کوئی سلام جواب کے بغیر ہی اس نے کہا، اے سردار، کیا تم نے مجھے بلایا؟ تم نہیں جانتے ہمارا کتنا کاروبار ہے، تم ہر چھوٹی سی بات پر اپنا سپاہی بھیج دیتے ہو
बताओ क्या बात है। उस ताजिर के रवैये को देखकर काजी भी बड़ा हैरान हुआ और पूछा, सरदार साहब, तुमने ताजिरों को बड़ी डील दे रखी है, इसका रवैया तो देखो। ताजिर के रवैये को देखकर सरदार ने कहा, काजी साहब, मैं आपको मामला बताता हूँ, लेकिन इससे मालूम कर लो कि आखिर वजह क्या है। अब सरदार ने यहूदी ताजिर से पूछा, क्या तुमने दुम्बे के गोश्त के साथ खिंजीर का गोश्त धोखे के साथ मिलाया है? तो आगे से ताजिर हंसने लगा और कहा, क्या खिंजीर के गोश्त का जायका अच्छा नहीं था? तो ये सुनकर सरदार ने कहा, ये क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो कि मुसलमान खिंजीर के गोश्त से सख्त नफरत करते हैं और उसे नफी की निगाह से देखते हैं। तुम खाने की बात कर रहे हो? तो यहूदी ताजिर ने कहा, सरदार साहब, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि जितना गोश्त तुमने हमसे मंगवाया इतना हमारे पास नहीं था, लिहाजा हमने उसके साथ खिंजीर का गोश्त मिला दिया। पहले हम सिर्फ यहूदियों को ही खिंजीर का गोश्त दिया करते थे, अब हमने सोचा कि आपके गोश्त के साथ इसको मिला दिया जाए। इतने गोश्त के साथ थोड़ा सा खिंजीर का मिला दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये सुनकर काजी साहब सख्त गुस्से में आ गया और उसने हुक्म दिया, इस ताजिर को अभी और इसी वक्त बाजार से धक्के देकर निकाल दिया जाए। और उसने सरदार से वादा किया कि मुसलमान ताजिरों को तुम्हारे बाजार के अंदर लेकर आऊंगा और वो ताजिर उस बाजार के अंदर तिजारत करेंगे। ये बात सुनकर सरदार ने काजी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब वो यहूदी ताजिर जाने लगा तो उसने कहा, बेशक तुम हमें बाजार से निकाल दो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को पैदा किया है और हर जानवर को पैदा करने का एक मकसद रखा, लेकिन तुम ये बताओ, आखिर खिंजीर को खाना इस्लाम में क्यों मना है? क्या तुम इसका सबूत दे सकते हो, ताकि हमें भी तो ये पता चले कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? आखिर दुम्बे का गोश्त क्यों हलाल है? आखिर बकरे का गोश्त इतने शौक से क्यों खाते हैं? ऊँट के गोश्त के मज़े से क्यों खाते हैं? आखिर खंजीर के गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये भी बाकी जानवरों की तरह अपना शिकार करता है और अपना ही खाता है। तो ये सुनकर काजी और सरदार खामोश हो गए, क्योंकि उनके पास कोई शरई जवाब नहीं था। बस वो ये जानते थे कि खंजीर का गोश्त मुसलमानों के लिए हराम है। काजी साहब ने सरदार को कहा, बेशक ये ताजिर बाजार को छोड़कर चले जाएं, लेकिन उनका सवाल बाकी रहेगा, लिहाजा हमें इनके सवाल का जवाब तलाश करना होगा। अब वो ताजिर बाजार को छोड़कर जाने लगे। वक्त गुजरता रहा, 2 दिन गुजरे तो उसी बाजार के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुजर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी मकसद के तहत उस रास्ते में से गुजर कर जा रहे थे, तो सुल्तान ने देखा कि बाजार के सारे ताजिर जो कि यहूदी थे अपना सामान घोड़ों पर लाद कर जा रहे थे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक यहूदी से पूछा, ए ताजिर, तुम आखिर इस बाजार को क्यों छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा मुनाफा नहीं मिलता? फिर बाजार का एक मालिक तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता? तो यहूदी ने कहा, सुल्तान मआज़म, पिछले चंद दिनों की बात है कि एक काजी ने हमसे गोश्त खरीदा। हमारे पास गोश्त कम पड़ रहा था, तो हमने दुम्बे के गोश्त के साथ खंजीर का गोश्त भी मिला दिया और सरदार की हाजत पूरी कर दी। तो जब सरदार को पता चला कि हमने गोश्त के अंदर खंजीर का गोश्त मिला दिया है, तो उसने हमें अपने बाजार से निकाल दिया। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर मैं सरदार की जगह होता तो मैं तुम्हें ज़ंदान के अंदर डाल देता। क्या तुम नहीं जानते कि मुसलमान खंजीर के गोश्त से सख्त नफरत करते हैं? तो यहूदी ने कहा, सुल्तान मआज़म, अगर जान की अमान पाऊँ तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा, पूछो, कौन सा सवाल? तो उसने कहा, सुल्तान मआज़म, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मकसद के तहत पैदा किया है, लेकिन आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? आखिर इसका कोई सबूत है? आखिर कोई इसका नुकसान बताइए।
जिससे हमें भी पता चले कि हमें खिंजीर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। आखिर खिंजीर के गोश्त के खाने में कौन सी मुश्किल है? ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हर सवाल का जवाब वक्त और जगह के मुताबिक देना चाहिए। तो यहूदी ने कहा, सुल्तान आज़म कौन सा वक्त और कौन सी जगह बेहतर रहेगी? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कल मेरे महल के साथ में मौजूद वादी के अंदर तुम अपने तमाम ताजिरों के साथ आ जाना और एक खंजीर को भी पकड़ लाना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कबीले के जितने भी लोग हैं वो खंजीर का शिकार बहुत माहिराना तरीके से करते हैं। ये सुनकर यहूदी ने कहा, सुल्तान आज़म कल हम वादी के अंदर पहुंच जाएंगे। अब वक्त गुजरने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वहां से चले गए। अगले दिन सारे यहूदी एक खंजीर लेकर मैदान के अंदर जमा हो गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद साथियों के साथ वहां पहुंचे और इस बात की खबर उस काजी और रेशमी कबीले के सरदार को भी दी गई कि कल सुल्तान के महल के करीब वादी के अंदर बहुत बड़ा जरगा होने वाला है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के सवालों के जवाब देंगे। अगले दिन काजी और सरदार भी वहां पहुंच गए। जैसे ही जरगा शुरू हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि जाओ और जंगल से थोड़ी सी गंदगी उठा कर लाओ। वो मुलाजिम दौड़ता हुआ गया और जंगल से गंदगी उठा लाया और दूर फेंक दी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस खंजीर को आज़ाद कर दिया जाए। यहूदियों ने जैसे ही खंजीर को आज़ाद किया तो वह दौड़ता हुआ गया और सूंघता हुआ उस गंदगी के पास गया और देखते ही देखते उस गंदगी को खत्म कर दिया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहूदियों से कहा, बताओ अब अगर इसकी जगह कोई दुम्बा या बकरा होता तो क्या वो इस गंदगी को खाता? तो ये सुनकर यहूदी सर झुकाए खड़े हो गए और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म हम नहीं जानते थे कि ये खिंजीर इंसान की गंदगी को भी खा जाता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यहूदियों से कहा, बताओ अब तुम्हें पता चला कि मुसलमान खिंजीर को क्यों नहीं खाते? जो अपनी गंदगी, जो दूसरे जानवरों की गंदगी, जो इंसानों की गंदगी खा जाता है, तुम बताओ उसके गोश्त के अंदर कौन सा तासुर होगा? क्या इसके गोश्त के अंदर कोई गुलाब के फूल की खुशबू होगी? तो ये सुनकर सारे यहूदी सर झुकाए खड़े हो गए। तो इतने में एक और यहूदी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, सुल्तान मुअज़्ज़म अल्लाह ताला ने हर जानवर को एक मकसद के तहत पैदा किया, लेकिन आप बताइए कि आखिर खिंजीर को पैदा करने का मकसद क्या था? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार थे तो उस कश्ती के अंदर न सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कौम सवार थी बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी सवार थे और उस वक्त कश्ती में उन जानवरों की गंदगी और इंसानों की गंदगी से सारे इंसान परेशान हो रहे थे। तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक इस गंदगी से हमें आज़ादी दे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हाथी की दुम से खिंजीर को पैदा किया और फिर वो खिंजीर इस कश्ती में घूमते फिरते और जानवरों की गंदगी को खा जाते और इस तरह कश्ती के लोगों की परेशानी खत्म हो गई। बस अल्लाह ताला ने इसी मकसद के तहत ही खिंजीर को पैदा किया। यह सुनकर सारे यहूदी हैरान और परेशान हो गए और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं था। अगर हमें इल्म होता तो हम कभी भी इन चीज़ों को ना खाते। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए लोगो तुम अभी रुको, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम आने वाली नस्लों को भी इन चीज़ों के बारे में बताओ कि हमारे इस्लाम में जिस चीज़ से मना किया जाता है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। तो सारे यहूदी ताजिर सामने खड़े सुल्तान के जवाब का इंतजार करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि एक सूअर के गोश्त का टुकड़ा लेकर आओ। ताजिर गया और बाजार से गोश्त का टुकड़ा लेकर आया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यहूदी को हुक्म दिया, तुम अपने सबसे माहिर बावर्ची को ले आओ। उसी वक्त एक माहिर बावर्ची को बुलाया गया तो सुल्तान ने हुक्म दिया
कि इस गोश्त के टुकड़े को अच्छी तरह पकाओ। यहूदी बावर्ची ने गोश्त के टुकड़े को कई देर तक पकाता रहा। जब गोश्त का टुकड़ा तैयार हो गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बावर्ची को कहा, अब इस गोश्त के टुकड़े को छुरी से काटो। जब यहूदी ने गोश्त के टुकड़े को छुरी से काटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खंजर की नोक से गोश्त का टुकड़ा सबके सामने लहराते हुए कहा, देखो इस गोश्त का ऊपर वाला हिस्सा पका हुआ है, लेकिन देखो दरमियान के अंदर गोश्त का हिस्सा कच्चा है। ये खंजीर का गोश्त ऐसा गोश्त है कि तुम इसको जितना भी पकाओ ये दरमियान में कच्चा रह जाता है, और जब ये हमारे पेट में जाता है तो ऐसी बीमारी हमारे पेट के अंदर पैदा होती है जिसका इलाज आज तक किसी भी हकीम के पास नहीं। यह सुनकर सारे यहूदियों ने उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कलमा पढ़ लिया, और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि आज के बाद पूरी सरजमीन पर ना ही खंजीर का शिकार किया जाएगा और ना ही कोई इसका गोश्त खाएगा। इसके बाद वही यहूदी ताजिर जो के पहले यहूदी थे अब मुसलमान हो चुके थे और उसी सरदार के बाजार के अंदर तिजारत करने लगे, और फिर वही बाजार चंद ही दिनों के अंदर मिस्र की सरजमीन का मशहूर तरीन बाजार बन गया। और इसी वजह से सारे यहूदी भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब को सुनकर मुसलमान हो गए थे। तो आज का वाक़या आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।